Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, our Good today's evening. topic is right to information. How many of you are dealing with right to information? Anybody is dealing with RTI? Yes, sir. Vice principals, APIO. APIO है कि नहीं बनाया भाई वाइस प्रिंसिपल्स को? बताइए. There are so many vice principals also ना. धनंजय जी प्लीज स्विच ऑफ. ये कैमरास वगैरह बंद रखिए, थोड़ा सा डाइवर्ट होता है माइंड ड्यूरिंग सेशन, है ना. यू जस्ट स्विच ऑफ योर कैमरास. हाँ प्लीज शेयर कीजिए कुछ. व्हाट डू यू नो अबाउट आरटीआई? एनीबडी इज playing the role of APIO? Hello, Babate ji, Srimati, मैडम. Yes, sir. आरटीआई में कुछ कर रहे कि नहीं? एपीआई वगैरह का रोल कुछ कर रहे क्या स्कूल में? नहीं. Nobody has been appointed as at least APIO. Principal is the PIO in your case, and vice principal is APIO. नहीं देख रहे क्या आरटीआई? चलिए शुरू करते हैं. अब तो करना पड़ेगा ना. When you become principal, you have to deal with this. तो Right to Information Act 2005. This was introduced in 2005. That is why its name is the Right to Information Act 2005. So let me just give its origin. शुरू कैसे हुआ RTI? How it was started. The Supreme Court has actually interpreted the this constitutional interpretation, and interpretation of RTI was given by Supreme Court under this right to freedom of speech and expression. So this is the RTI, right to information is also a part of your freedom of speech and expression. So that interpretation was given by Supreme Court, and several cases were actually filed in the Supreme Court. उसमें मेन इम्पोर्टेंट केस है. कौन आ गया भाई? ज्वाइन नहीं हुए लोग अभी तक. So important case, Uttar Pradesh versus Rajnarayan and others. Secretary, Ministry of Information Broadcasting, Government of India and others versus CAB and others. And SP Gupta versus Union of India. ये 3 cases very important है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन लोगों ने क्लेम किया था कि we have right, है ना, under this right to freedom and of speech and expression, fundamental जो right है constitution में, and right to information is also a part of that, because ultimately government is spending, collecting money from the public and spending on it. तो वी हैव राइट टू नो कि क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पैसों का सही उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सरकारी दफ्तरों में, उसको जानने का हमें पूरा अधिकार है. एंड दे वन द केस ऑल्सो. तो इसमें एक जजमेंट था. सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए जजमेंट अंडर दिस SP Gupta versus Union of India केस में. द कंसेप्ट ऑफ एन ओपन गवर्नमेंट is the direct emanation from the right to know, which seems to be implicit in the right of free speech and expression guaranteed under Article 19(1). Yeah, this is judgment given by Supreme Court. And ये बताया number A, therefore disclosure of information in regard to the functioning of the government must be the rule and secrecy an exception. तो कोई secrecy भाई, गवर्नमेंट जहाँ secrecy maintain करना चाहती है, you need not to disclose, but other things you have to disclose. That judgment was given by Supreme Court in SP Gupta versus Union of India. But they interpreted this, है ना, right to freedom of speech and expression का उन्होंने further interpretation किया, और उसमें judgment में ये बताया कि government must form some act, कुछ ना कुछ act law है, लोगों को पूरा जानने का अधिकार है कि उनके पैसों का क्या उपयोग हो रहा है सरकारी दफ्तरों में.
तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अदर्स एक और केस था। तो सारे जो केसेस है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर ऑन द गवर्नमेंट, सो दैट इज व्हाई एन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट which is known as Right to Information Act 2005. Now इसके अलावा और भी है, there are certain things, the origins of the RTA Act in India. एक देवडोंगरी राजस्थान का केस है, वो I will discuss है ना later on, देवडोंगरी केस। मजदूर किसान शक्ति संगठन 1990, minimum wages guaranteed by state, public distribution system, जन सुनवाई in 1994, local politicians, मतलब आग लगना शुरू हो चुकी थी इसमें पहले से ही। और राजस्थान में जड़ा बहुत ज्यादा बवाल था, है ना, अधिकार जानने का हमें अधिकार होना चाहिए भाई। तो ये शुरू हो गया था 1990 से, और 96 में फिर धरना हुआ अजमेर में। राजस्थान राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000 बनाया गया, फर्स्ट सबसे पहले जो एक्ट आया राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000, इट केम इन राजस्थान। The need to repeal of the Official Secret Act 1923 था, that was repealed and this was introduced, replaced by Right to Information Act 2005, and first draft legislation circulated by the Press Council of India. तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कैसे शुरुआत हुई। देवडोंगरी केस के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं मालूम? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। द राइट टू इन्फॉर्मेशन, एनीबॉडी इज देयर फ्रॉम राजस्थान? नहीं है। यस सर। देवडोंगरी केस, हाँ बोलिए, देवडोंगरी केस के बारे में कुछ जानते हैं? डू यू नो अबाउट नहीं, सर। देवडोंगरी? हाँ नहीं, नहीं, इट्स वेरी ओल्ड केस। वन इलिटरेट है ना, लेडी वाज देयर है ना, हु वाज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ दिस ट्राइबल्स इन राजस्थान, और काफी उसमें हंगामा हुआ था। देवडोंगरी केस पढ़ लेना आप राजस्थान का। एन इलिटरेट लेडी स्टार्टेड दिस, कि भाई सरकार हमारे लिए क्या कर रही है उसको जानने का हमें अधिकार है। और शी वाज ट्राइबल लेडी, वेरी फेमस है देवडोंगरी, वेरी ओल्ड केस। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में पास हुआ एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सो हम देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। An act to provide for setting out the practical regime of the right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities. The first objective था भाई, पब्लिक का पैसा है इसलिए पब्लिक को जानने के लिए पूरा अधिकार है क्या चल रहा है सरकार में, उनके पैसों का किस तरह से उपयोग हो रहा है, कहाँ खर्च कर रही है, क्या चलता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, है ना, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड रिमूव करप्शंस। व्हाई यू वांट टू हाइड फ्रॉम द पब्लिक व्हेन यू आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक? तो जो कर रहे हैं उसको बताओ भाई पब्लिक को। एंड देन सेकंड था टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission, and to matters concerned there with or incidental thereto. तो स्टेट में भी बनाया गया स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, एंड ईच एंड एवरी स्टेट है ना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकंड ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो अधिकारी काम कर रहा है भाई वो ही शुड बी अकाउंटेबल ऑल्सो ना, कि किस तरह से कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग इन हिज ऑफिस। तो these are the two basic objective of right to information. Then its notification was issued, है ना, in Gazette of India, and preamble to the right to act, है ना, it's a written document है, and under preamble they have mentioned Constitution of India has established that India is a democratic republic. क्या है भाई? प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा के द्वारा चलाया जाता है, जनता का राज जनता की।
So information, informed citizenry and transparency of information are vital to the functioning of our democratic republic. प्रियम्बल में लिखा है कि भाई जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन बताओ, वाइटल इन्फॉर्मेशन, इट्स ए वाइटल पार्ट ऑफ दी है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रजातांत्रिक देश है तो प्रजा के द्वारा चला गया तो उस प्रजा को मालूम तो होना चाहिए कि उसके देश में क्या चल रहा है, उसकी सरकार है, प्रजा की सरकार है ना। टू कंटेन करप्शन, सेकंड ये था प्रियम्बल कि वी हैव टू कंटेन करप्शन आल्सो। सरकारी दफ्तरों में इतना ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है, उसको कंटेन करने का भी एक उद्देश्य था इसके पीछे। एंड टू होल्ड गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। जो भाई बैठे हुए अधिकारी है ना ऑफिसों में, सो कॉल्ड हेड ऑफ द ऑफिसेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना, वो दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। पब्लिक का कर रहे हैं भाई काम, वो दे आर अल्टीमेटली दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना। सो दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। इन्फॉर्मेशन लो कुछ कहीं गलत हो रहा है तो इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट में ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, है ना, पब्लिक के सामने आना चाहिए वो चीज़ें। तो ये प्रियम्बल में इट हैज़ ऑलरेडी बिन मेंशन इन द रिटन डॉक्यूमेंट। एंड इसका सबसे जो फर्स्ट सेक्शन है, दिस सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 and came into force with effect from 21st June 2005, the date of which तेज सिंह जरा बंद करो भाई, म्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेक्शन जो है that says कि this act may be called as Right to Information Act 2005 and it came into force with effect from 21st June 2005. 21st June 2005 को फर्स्ट गजट नोटिफिकेशन आया था इसका। And the government has given some time to implement this act in all the government offices. तो आगे देखेंगे। Then section 2. Section 2 of the right to information. Here they have defined information means what? Information means any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press release, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held by any electronic form. So any form and any this these documents available in material form in your office, they comes under the definition of information which has to be provided if anybody asks you. ठीक है? So information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. कौन आ गया भुल्लर जी? 1 second. मेमोज क्या है सर? मेमोरेंडम्स, जो भी आपके जो गवर्नमेंट के जो आते हैं ना सर्कुलर्स वगैरह, आपने देखा होगा, उसको ओएम लिखते हैं, मेमोरेंडम्स लिखते हैं। ओके सर। मेमोज मीन्स मेमोरेंडम्स। सो दीज आर दी रिकॉर्ड्स है ना विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बोले इंफॉर्मेशन क्या है भाई? इंफॉर्मेशन दे दो, कौन सी इंफॉर्मेशन दे दो? तो ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं आपके पास में, दे कम्स अंडर द definition of information and if anybody asks you, you have to provide. Then records includes, section 2 में आगे और define किया, any document, manuscript and file, any microfilms, microfiche and facsimiles copy of a document, किसी भी शक्ल में आपके पास अवेलेबल हो, है ना, चाहे मैन्यूस्क्रिप्ट के शक्ल में, चाहे डॉक्यूमेंट की शक्ल में, चाहे माइक्रोफिल्म्स की शक्ल में, दे कम्स as government records. And if anybody wants this information, you have to disclose it. Any reproduction of image or images embodied in such microfilm, whether enlarged or not, any other material produced by a computer or any other device. कंप्यूटर से आजकल सब बनाते हैं, हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, है ना, उसको हार्ड डिस्क में आजकल रख दिया जाता है सहेज के, रिकॉर्ड स्टोर करके। So that is also part of records.
Then section 2J, right to information means the right to information accessible under this act. यहाँ इन्होंने डिफाइन किया कि right to information means what? Right to information means the right to information